Today I'm going to give you the truth about dating, especially if you are a hardworking man. अगर तुम सच में एक हार्डवर्किंग मैन हो who is out of his own comfort zone, who is working his ass off, trying to retire their parents, और तुम्हारा mindset अगर इस तरीके का that you want to achieve certain things and you want a certain position, power and respect in your life, अगर तुम उस टाइप के हो अगर तुम्हारा वो माइंडसेट है मैं तुम्हें आज एक डेटिंग एडवाइस और डेटिंग के बारे एक सच बताने वाला हूं विच इज क्वाइट फैसिनेटिंग बट दैट्स फकिंग ट्रुथ माय ब्रदर। अब मैं डायरेक्टली उसमें मूव ऑन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है, हम एज्यूम करके चलेंगे कि यू हैव अ गर्लफ्रेंड एंड द टाइप ऑफ माइंडसेट यू हैव जो मैंने तुम्हें बताया, सो यू आर ऑफ कोर्स डेटिंग अ गर्ल टू मैरी हर। तुम टाइम पास के लिए डेट नहीं कर रहे हो, योर वो क्या बोलते हैं, इंटेंशंस आर टू मैरी हर, टू प्रोवाइड फॉर हर, टू मेक हर योर वाइफ, द मदर ऑफ योर चिल्ड्रन। सो ये तुम्हारा माइंडसेट है एंड इस चीज को समझना, यू आर वर्किंग हार्ड, you are doing all you can, you are trying to do business, you are doing that job, everything जो भी तुम कर रहे हो, एक चीज को समझना, that girl who is your girlfriend right now will say you, will try to comfort you. Let me tell you, मान लो तुम हफ्ते में 3 दिन जिम कर चुके हो, then the 4th day she will only say कि क्यों जिम करनी है, 3 दिन तो कर चुके हो, let's skip 1 day, कुछ नहीं होता, do not work out. For example, another example, that you had your 3 hours deep work session and then you message her that my first session is over, after half an hour I am starting again. Then she will say इतना काम तो कर लियो यार, 3 घंटे काम कर लियो, क्यों कर रहे हो, और मत करो, कुछ नहीं होता, आज के लिए इतना काफी है, टेक रेस्ट, रिलैक्स करो, कुछ थोड़ा सा टीवी देख लो, रिलैक्स करो, मेरे से बात कर लो, ये कर लो. She will try to comfort you. If she's a high value woman, actually subconsciously she is testing you, because that's why I said it's fascinating, because at some point she is attracted to the hard working personality of yours, because वो चीज उसे एक सेंस ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कि यस दिस पर्सन इज रियली डेडिकेटेड, ये एक he can be a very good husband, he is a very good boyfriend, and he can be a very good father, he can provide for me and for my family, for our children. She truly believes that, and that's why she is testing you कि are you getting comfortable or not. हो सकता है कि वो intentionally नहीं कर रही हो ये, but when you start getting into that comfort zone कि हाँ यार चल 3 दिन तो किया था, आज तो बोल रही तो मिस कर देता हूँ, 1 time, 2 time, 3 time, at 4th time she will stop saying you that, and it will get unattractive for her. That's a little bit brutal, but you need to keep that thing in mind, because that's a fucking true, that's a fact, वो एक फैक्ट है, ऐसा होता है, और तुम्हें चीज को अपने दिमाग में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि योर गर्ल विल ट्राई टू कंफर्ट यू, बट योर एक ना बहुत अच्छा कोट है, मेरे को याद नहीं है मैंने कहां पढ़ा है, देयर इज अ पेज व्हाट मेन शुड डू, उन्होंने डाला था, आई रिमेंबर इट, बट किसने बोला है मेरे को नाम याद नहीं है, एंड दैट कोट गोज लाइक चेज योर गोल and you will get both your woman and your goal. Chase your woman, you will lose both your goal and your woman, and that's a fucking fact, because you need to understand this. She was attracted to you because she believed you are such a hard-working person. She was feeling secure with you. She was feeling a sense of safety that this man can provide for me. उसका जो feminine side होता है वो बाहर आ रहा था because of her masculinity. But अगर तुम
उस अपने अल्फा को खोने लग जाओगे, देन शी विल गेट अनअट्रैक्टिव even after marriage. Even after marriage, if a woman who is truly feminine, तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा that then you are the man of your own house, then you need to be the man. तुम्हें मैन के जैसे एक्शंस भी लेने पड़ेंगे. तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी वाइफ तुम्हें रोकेगी कि यार नहीं, इतना हार्ड तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, बट दैट्स द फर्स्ट थिंग शी इज अट्रैक्टेड टू. That's the first thing that give her, the sense of security, the safety. That's the first thing that take out her feminine side. वही फेमिनिन साइड जो तुम्हारा वो ट्रेट था ना, हार्ड वर्किंग का, वो डेडिकेशन का, वो डिटर्मिनेशन का, वही तो उस लड़की का फेमिनिन साइड बाहर लेके आ रहा था. और अगर तुम उस चीज को बंद कर दोगे, देन ब्रदर, शी विल become less feminine and she will get unattractive towards you. तुम उसके लिए unattractive हो जाओगे. That's a fact. It is a short dating advice, but लोग ये चीज समझते नहीं है. Young men, जो लोग एक्चुअल में ये माइंडसेट कैरी करते हैं that I want to date a woman, मतलब date to marry a woman. So अगर वो माइंडसेट कैरी करते हैं, उनको ये चीज ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई मैं स्टार्टिंग में बोला, इफ यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन हु इज डेडिकेटेड टू अ पर्पस, टू अ गोल, ये डेटिंग एडवाइस उनके लिए है. बिकॉज तुम्हारी लाइफ में जो लड़कियां आती है ना, वो बहुत एनर्जी कंज्यूम कर सकती हैं, तो तुम उतनी एनर्जी देते नहीं हो किसी को. पर जिसको दे रहे हो, जो लड़की एक्चुअल में तुम्हें पसंद है एंड यू बिलीव शी कैन बी अ पोटेंशियल मदर ऑफ योर चिल्ड्रन, सो उसके साथ तुम्हें ये होगा, ये चीज तुम फेस करोगे. आई एम टेलिंग यू दिस, यू विल फेस दैट, बट यू विल नॉट गेट कंफर्टेबल. You should not, because that's the most disgusting thing a man can do, and that's how you become complacent and weak. And I know you are not weak, you're working your ass off, so keep grinding and keep providing for your people. God bless you. Hustle hard. Peace out.